अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। अपनी सोशल स्टडीज़ की बुक ओपन करें, न्यू एडिशन आवर वर्ल्ड एंड बियॉन्ड, यूनिट नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 2, ह्यूमन सेटलमेंट्स। ह्यूमन सेटलमेंट्स का से मतलब है कि हम इंसानी आबादी है, इंसान का कहाँ बंदोबस्त करता है, कैसे रहता है, ऑल द सेटलमेंट्स। तो सबसे पहले है फ्रॉम द एशियंट टाइम्स when the old civilization were developing, people would usually settle down in places where there were necessities for human societies to live and grow. At the top of this list necessities was water, usually in the form of river. The other factors were food, climate and security from wild beasts. All ancient great civilization like Indus Valley civilization in Pakistan, the Egyptian civilization, Chinese civilization and Sumerian or Mesopotamian civilization started along the banks of rivers. As societies kept growing, getting more advanced and industrialized, there were now new means of earning a living other than agriculture and cattle. These new means of living also brought along better and easier urban lifestyles in cities compared to the hard and difficult lives with fewer facilities in the villages. These factors over period together triggered a major change in population from completely rural way of living to the modern living in cities we now take so much granted. People migrate to get better opportunities, and this is what they continue to do even today when some of our relatives migrate to not to just cities in Pakistan but sometimes to other countries इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड मोर इनकम। इसमें कहा जा रहा है कि जब वर्ल्ड स्टार्ट हुई थी तो हमारे पास जस्ट फ्यू हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ थी, यानी ज़रूरियात थी, जैसे कि पानी, शेल्टर, थोड़ी सी जगह, पानी या फिर खाने के लिए, या फिर सिक्योरिटी के लिए हमें, यानी जो जंगली जानवर थे उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती थी। लेकिन जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया वैसे वैसे हमारी ज़रूरियात बढ़ती गई, जैसे कि हमें अब एजुकेशन कंपल्सरी है हमारे लिए, हमें अब बेटर हाउसेस भी चाहिए, हमें प्रॉपर रोड्स भी चाहिए जिस पे ट्रांसपोर्टेशन की जाए, हमें हर चीज़ अब बेटर चाहिए, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, या तो किसी सिटी में मूव कर जाते हैं या फिर किसी बिग सिटी में मूव कर जाते हैं या फिर वो किसी कंट्री में मूव कर जाते हैं। मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पेज नंबर 96। Urban areas. In human settlements, urban stand for an area that is larger human population and extensive human built infrastructures in comparison to the area surrounding it. Urban area is a place of living that is custom built and developed by human through the advancement in technology. अर्बन एरिया से जैसे मैंने पहले पिछले लास्ट रीडिंग में बताया था कि अर्बन एरियाज़ क्या होते हैं, शहरी इलाके जहाँ पे ये मैन मेड इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद है कि बिल्डिंग्स, रोड्स वगैरह ये खुद ही बनाए होते हैं, इंसानों ने खुद ही डिज़ाइन किए होते हैं, और वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, बेटर हॉस्पिटल्स होते हैं और ट्रांसपोर्ट का भी बेहतर इंतज़ाम होता है। और नेक्स्ट है हमारा रूरल एरियाज़, यानी देहाती इलाके। A rural area on the other hand is a place which has more primitive form of living carrying on from the ancient time. Unlike the modern cities, rural areas are usually not too much tempered with the more or in their nature state without much infrastructure, at least much less infrastructure and construction compared to cities. Generally, however, it is not urban considered rural. According to US Department of Health and Human Service, rural is an area that encompasses all population, housing and territory not included within urban area. Rural areas have a low population and small settlements as compared to urban areas. In fact, areas are means of agriculture and cultivation. Countries have varying definitions of what is considered rural, and certain level of population density and land available for farming are some of the criteria for defining a rural area. रूरल एरिया बिल्कुल ऑपोजिट है अर्बन के, यहाँ वहाँ पे लोग रहते हैं लेकिन वहाँ के रोड्स बिल्डअप नहीं होते, वहाँ की सड़कें बस जहाँ से एंटर होना है वो कुछ बनी होती हैं, अंदर बस उनकी गलियाँ होती हैं और लोग बस सिंपल लाइफ स्पेंड करते हैं। उधर का ज़्यादातर जो लोगों की एम्प्लॉयमेंट है, ज़्यादातर काम करते हैं वो फार्मर्स का है, वो एग्रीकल्चर का काम है।
और वहाँ से ज़्यादातर लोग सिटीज़ में मूव करते हैं अपनी एजुकेशन और हेल्थ इश्यूज़ के लिए। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन इन द वर्ल्ड। इन आवर वर्ल्ड टुडे, आउट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 7.25 billion people, 3.9 billion people are living in urban areas. The world is gradually become more urban, and in certain places there is danger of too much urbanization at the cost of useful, fertile rural agricultural lands becoming housing society. नेक्स्ट हमारा पेज है 97। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, द अर्बन पॉपुलेशन वुड ग्रो टू 9.4 billion by 2050, with 37% of that growth to come from 3 countries like China, India and Nigeria. इसमें बताया गया था कि वर्ल्ड में ओवरऑल जो है ज़्यादातर लोग अर्बन एरियाज़ चूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा मूव ऑन करते हैं क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो कह रहे हैं कि ग्रो कर सकती है 7.4 बिलियन से 9.4 बिलियन तक 2050 में, बिकॉज़ क्योंकि जो मोस्टली आबादी है वो 37% यानी आएगी चाइना से, इंडिया या नाइजीरिया से, क्योंकि वो इलाके ज़्यादा डेंस हैं, वहाँ पे आबादी ज़्यादा है। डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज़। Some other differences between urban and rural areas are better employment, education and health facilities in urban areas. सबसे पहला डिफरेंस जो मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि शहरी इलाकों में क्या है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, जबकि रूरल एरियाज़ में ये कम है। लेकिन रूरल एरियाज़ में क्या ज़्यादा है, रूरल एरियाज़ हैव गुड एंड ऑर्गेनिक फूड एट अफोर्डेबल प्राइस दैट इज़ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट इज़ वुड कॉस्ट इन अ सिटी. Even in the environment in rural areas is less populated, since industrial population from factories and later due to high density of population people living in cities is not present in the rural areas. वही खाना ज़्यादा हाइजीनिक फ्रेश मिलता है और लेस प्राइस में मिलता है, जबकि सिटीज़ में उतना ही महंगा मिलता है। एंड देन वो इन्वायरमेंट उनकी वहाँ का माहौल लेस पॉपुलेटेड होता है, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होती, गंद नहीं होता हवा में, फैक्ट्रीज़ की जितना भी गंद वगैरह गार्बेज वो भी वहाँ पे नहीं होता और वहाँ पे सुकून होता है। इन्फ्लेशन हैज़ स्ट्रोंगर इम्पैक्ट ऑन लाइफ इन सिटीज़। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। जब चीज़ों की प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं तो उसका ज़्यादा असर है सिटीज़ पे। वाइल इन रूरल एरियाज़ पीपल कैन लिव ईजीली ऑन लो इनकम लेवल्स। जबकि रूरल एरियाज़ में स्मॉल अमाउंट ऑफ इनकम उनमें कम हो तो वो वहाँ पे गुजारा कर सकते हैं। सिमिलरली कंपेयर टू विलेजेस देयर इज़ हाई सोशल इंटरेक्शन इन अर्बन एरियाज़ ड्यू टू हाई population density and urban lifestyle, but the social interaction in rural areas is longer and more intense in rural areas. कह रहे हैं कि चीज़ों की अपॉर्चुनिटीज़ और ये सब कुछ होने के बावजूद जो सा इंट्रैक्शन है, लोगों का मेल जोल है, वो रूरल एरियाज़ यानी देहातों में ज़्यादातर यहाँ के ये जो अर्बन एरियाज़ यहाँ पे सोशल लाइफ ज़्यादा है, लोग मिलते हैं चले जाते हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ में लोग मिलजुल के रहते हैं और उनका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। As we have seen earlier, the standard of living in urban areas is higher compared to villages, and as it is most enjoy the benefit of technology more and more earlier than in rural areas. और कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी या न्यू चीज़ आनी है वो पहले सिटीज़ में आती है, इसलिए उसके बेनिफिट्स सबसे पहले सिटीज़ को होते हैं यानी अर्बन एरियाज़ को होते हैं, और उसके बाद फिर रूरल एरियाज़ को जाके वो चीज़ मिलती है। सो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, यूनिट नंबर 6 का चैप्टर नंबर जो कंप्लीट हो गया है। इसकी रीडिंग आपने अच्छे से करनी है। देन अपनी नोटबुक्स ओपन करें। सबसे पहले आपका लास्ट चैप्टर ये चैप्टर नंबर 1 था, यूनिट नंबर 6 का चैप्टर नंबर 1, उसके ऑब्जेक्टिव की फिल इन दी ब्लैंक्स रह गई थी। सबसे पहले आपने नोटबुक पे वो नोट करनी है। हमारी फिल इन दी ब्लैंक्स चैप्टर नंबर 1 की यूनिट नंबर 6 की वो रह गई थी। सबसे पहले सेम आपने नोटबुक रेडी करनी है, मॉडर्न लाइन्स, उसके बाद टॉपिक, एक्टिविटी आपकी ऑब्जेक्टिव है, फिलिंग द ब्लैंक्स आपकी फ़र्स्ट है डैश इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग इन एन एरिया, इधर एन आना है। आंसर इज़ पॉपुलेशन। सेकंड है फर्स्ट इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन इज़ द डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये डैश थी, इसका रिसोर्सेज आंसर है।
dash over water are becoming a source of tension, conflict. And fourth है density is the number of people living, ये आपका blank है, dash is the number of people living within a certain area usually a square kilometer, इसका आंसर है density। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 2 यानी यूनिट नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स हैं। हमारा टॉपिक है ह्यूमन सेटलमेंट्स। उसी तरह अपनी नोटबुक रेडी कर लें, ब्लू मार्कर एंड ब्लू इंक पेन ले लें। एक्टिविटी है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ सेटलमेंट? आंसर इज़ द वे ऑफ पीपल लिव ऑन लैंड, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज is known as settlement. And second question है define population, the number of people living in an area are called population. Then third question है what is urbanization? It refers to the increasing number of people that live in urban areas. जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन अर्बन एरियाज, उसका आंसर इधर बुक से है। अर्बन स्टैंड्स फॉर एन एरिया दैट इज़ लार्जर ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एक्सटेंसिव ह्यूमन बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंपैरिजन टू द एरिया सराउंडिंग इट। इसको अपने नोटबुक पे नोट कर लेना है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। उसके बाद हम आते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन पर। आपका लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज़। सम डिफरेंसेस बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज़, ये आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सम से। सम डिफरेंसेस बिटवीन द अर्बन एंड रूरल एरियाज़ आर बेटर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ in the urban areas. Rural areas have good and organic food at an affordable price that is fraction of what is would cost in city. Even in the environment it is rural areas is less polluted since industrial pollution from factories and later due to the high density of population living in cities is not present in rural areas. Inflation has stronger impact on life in the city, while in rural areas people can live easily on low income levels. Similarly, compared to the villages, there is high social interaction. There is high social interaction in rural. There is high social interaction in rural is longer and more intense in rural areas. As we have seen earlier, the standard of living in urban areas is higher compared to the villages, as cities mostly enjoy the benefit of technology much more and much easier than in rural areas. ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी ख़त्म हो गए हैं। इसके बाद है आपका ऑब्जेक्टिव है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है अर्बन स्टैंड फॉर एन एरिया डैट इज़ लार्जर ह्यूमन डैश पॉपुलेशन। सेकंड है द वर्ल्ड इज़ ग्रेजुअली बिकमिंग मोर डैश, इसका है अर्बन। थर्ड है द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अर्बन एरियाज इज़ डैश हायर, पीपल माइग्रेट टू गेट बेटर डैश अपॉर्चुनिटीज़। फिफ्थ है अर्बन एरिया इज़ अ प्लेस ऑफ लिविंग डैट इज़ डैश कस्टम बिल्ट, इसके इधर ऐसा आता है कस्टम बिल्ट। आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अपनी नोटबुक्स पे अच्छे से आपने लिख लेना है सब कुछ रेडी करके, और वही ब्लू मार्कर और ब्लू इंक पेन से मार्जिन लाइंस आपने लेड पेंसिल से ड्रॉ करनी है, और रीडिंग भी अच्छे से करनी है। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।